Good morning, student. Today we are discussing exercise 6.2 class 12 math NCERT. Question number 12. Which of the following functions are strictly decreasing on 0 to pi? Open interval 0 to pi. Then part A, cos x. Then y is equal to cos x, or you can say fx is equal to cos x. In open interval 0 to pi, the function is strictly increasing function. Then differentiate with respect to x. With respect to x, then f dash x, this minus sin x. Then for strictly increasing function, to find strictly increasing on interval 0 to pi by 2, then f dash x is greater than 0. So this minus sin x, this minus sin x, sin x is positive, this strictly increasing, or you can say strictly decreasing. This strictly decreasing, then f dash x is less than 0. For strictly decreasing, this value is less than 0. This minus sin x, this sin x is positive, or sin x positive in 0 to pi by 2, then this interval, this value is 0, but the sign is negative, that means f dash x is less than 0. So this minus sin x is less than 0, so fx function is strictly decreasing on 0 to pi by 2. So strictly decreasing होगा function. Then part B में देखा cos 2x and cos 2x, fx is equal to cos 2x on strictly decreasing on 0 to pi by 2. Then f dash x is cos x minus sin 2x into 2. This interval is 0 to pi by 2. This 0 less than x less than pi by 2. And then f dash x, this. अब हमें ये बताना है this function f dash x is less than 0. ये less than 0 है या नहीं है. But given that 0 to x is lies between 0 to pi by 2, this multiplied to 2, 0 is less than 2x and less than pi. तो जो हमारे पास 0 से पाई के बीच में 2x कहाँ लाई करेगा? 2x लाई करेगा हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में. फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट द साइन x इज पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाई बाय 2, दिस वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव. देन टू फाइंड दिस f डैश x जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए. एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 0. माइनस 2 sin 2x इज लेस देन 0. सो fx is strictly decreasing on 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 के बीच में strictly decreasing function होगा, because the derivative of this function is less than 0 in interval 0 to pi. अगर हम बात करें इसके थर्ड पार्ट की, cos 3x में क्या होगा? यहाँ पे कर देते हैं this cos 3x, 3 cos 3x. जब cos 3x होगा तो हमारे पास ये फंक्शन होगा sin 3x into 3. एंड देन 0 to pi by 2 के बीच में लाई करें, लेकिन 3x के लिए अभी हमारे पास फंक्शन 0 to x लेस देन pi by 2 है. 3 से मल्टीप्लाई करें, 0 इज लेस देन 3x लेस देन 3 pi by 2. अब आप देखेंगे कि ये क्वाड्रेंट हमारा पहले यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया. this positive value, sin की, और this negative value.
एक जगह पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, एक तरह से ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो हमारे पास हम क्या कहेंगे, नीदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारे पास क्या है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2 sin 3x बिकॉज द वैल्यू इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। दैट मीन्स ये आपके पास जो सी पार्ट है वो नहीं होगा। एंड डी पार्ट इज टेंजेंट, डी टेंजेंट एक्स, fx is equal to tangent x, f dash x is equal to sec square x. This value is always positive क्योंकि square है यहाँ पे, and this value is always positive and in first quadrant all value are positive and their square is also positive. तो ये f dash x is greater than 0 आ गया हमारे पास यहाँ पे, f dash x is greater than 0, लेकिन हमें चाहिए क्या, f dash x is less than 0। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। द fx is equal to 10x 0 to π/2 is not a strictly decreasing function. Question number 13. On which of the following interval the function by fx is 13 question, the fx is equal to x raised to power 100 plus sin x minus 1 is a strictly decreasing function। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है तो किस इंटरवल के अंदर होगा वो हमें बताना है। देन f dash x is 100 x raised to power 99 sin x का cos x। this first interval 0 to 1 and 0 to 1 this function is positive। 0 to 1 में अगर हम वैल्यू करेंगे तो cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड दिस वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव 0 to 1 एंड दिस π/2 to π/2 to π। अगर हम π/2 वैल्यू पुट करते हैं ये नेगेटिव होगा, बट दिस वैल्यू अगर हम यहाँ पे वैल्यू दिस वैल्यू π/2 to π दिस वैल्यू इज 1 पॉइंट समथिंग से लेके 2 पॉइंट समथिंग के बीच में होगी और उसकी 99 वैल्यू अगर हम करेंगे तो दिस वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव क्योंकि ये बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, दिस वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव। देन f dash x is this positive in π/2 to π and 0 to π/2 this value 0 to π/2 में हमारे पास एक cos की वैल्यू हो सकती है, वो भी -1 तक जा सकती है, लेकिन यहाँ भी ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और दैट मीन्स द पार्ट इज डी f dash x is greater than 0 then the function is a strictly increasing function in all the interval, then d none of these। क्योंकि उसने क्या पूछा था हमारे से, इन इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो 3 इंटरवल के अंदर नहीं है, तो फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज हमने लिख दिया, नन ऑफ दीज हमारे पास जो है वो इसका ऑप्शन आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a show that such that the function f given by fx, this fx is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 to 2। इस इंटरवल के अंदर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देन f dash x is equal to x square 2x plus a। This f dash x if strictly increasing function then f dash x is greater than
0. That means 2x minus a is greater than 0. That means plus a, and a is greater than minus 2x. हम अगर इसकी वैल्यू भी पुट करते हैं, ये तो ओपन इंटरवल में दे रखा है, लेकिन हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, इस a की वैल्यू निकालने के लिए हमें चेक करना होगा कि ये वैल्यू कहाँ पे हमारे पास आएगी. हम लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू -2 इंटू 1 हम वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, -2. दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या आ सकती है, a इज इक्वल टू -2 इंटू 2, दिस a इज इक्वल टू -4. दैट मीन्स a की वैल्यू होगी -2 से बड़ी, a इज ग्रेटर देन -2 एंड a इज ग्रेटर देन -4. तो -2 से बड़ी हमारे पास वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 0, दिस -2, दिस -4. जो वैल्यू हमारी -2 से बड़ी है, -2 से जो बड़ी है वो -4 से बड़ी होगी. यस और नो? यस, दिस वैल्यू अगर -2 से बड़ी है कोई वैल्यू, -2 से बड़ी दिस वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यू बड़ी है, तो -4 से बड़ी होगी. दैट मीन्स द वैल्यू इज a is greater than -2. The answer is a is greater than -2. And up to infinity. Let I be any interval disjoint from -1 to 1. हमारे पास एक disjoint सेट दे रखा है, उस disjoint सेट की बात करते हैं. disjoint सेट का मतलब क्या है ये भी हम आपको बताएंगे. Then question number 15. Then fx is equal to x plus 1 by x, and x belongs to disjoint set this -1 to 1. disjoint set इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास इंटरवल है, ये -1 है, ये +1 है, दिस -infinity to -1 and this 1 to infinity, this interval. इन दोनों की यूनियन जो है वो हमारे पास है, ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है. दैट मीन्स ये डिसजॉइंट सेट है ये हमारे पास, जिसमें ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है, और इनके बीच में जो वैल्यू आती है वो भी इंक्लूड नहीं है. तो हमने बताना है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किसमें, इस डिसजॉइंट सेट के अंदर. डिसजॉइंट सेट का मतलब इसमें और इसमें दोनों में आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए, तभी इस डिसजॉइंट सेट के अंदर आ जाएंगे. एंड f dash x is equal to x का डेरिवेटिव 1 and this -1 by x square. Then f dash x is equal to x square minus 1 upon x square. For strictly increasing, then f dash x is greater than 0. That means x square minus 1 upon x square is greater than 0. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बात कर रहे हैं, दिस ग्रेटर देन 0. तो हमारे पास अब ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, अब डिपेंड करता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, दिस वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स x square minus 1 is greater than 0. Then x square is greater than 1. क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए लेट x square is equal to 1 and x is equal to plus minus 1. तो डिसजॉइंट सेट हमारा यही आ गया जो हमने बताया, x square is greater than -1 to 1. दैट मीन्स x की जो वैल्यू आई वो हमारी क्या आई, -1 और 1 के बीच में आई. दैट मीन्स दिस इंटरवल. अब इसके बाद हमारे पास ये इंटरवल आ गया, इस इंटरवल में ये आप देखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. -1 से नीचे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, -1 से नीचे -2 का स्क्वायर 4, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव. और अगर हम 1 से बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस वैल्यू इज 2 का फिर वही पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव. दैट मीन्स इस पूरे इंटरवल के अंदर ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. दैट मीन्स हैज प्रूव्ड दिस -1 to 1 को छोड़ के, इस इंटरवल को छोड़ के बाकी सब पे ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16.
prove that the log of sin x 0 to pi and 0 to pi by 2 is strictly increasing and strictly decreasing on pi by 2 to pi। तो ये हम कर सकते हैं fx को दे रखा है, वो log of sin x दे रखा है हमारे पास। देन डिफरेंशिएट करेंगे, f dash x is equal to 1 by sin x and sin x का cos x, then f dash x is equal to tangent x, sorry cot x हो गया अब हमारे पास। दिस वैल्यू इज cot x, जो cot x है हमारे पास 0 to pi by 2, all values are positive। 0 to pi by 2 ये वैल्यू क्या होगी, strictly increasing होगी। f dash x is greater than 0, then cot x is also greater than 0। 0 to pi by 2, this value is strictly increasing function, and pi by 2 to pi by 2 to pi, this function this value is negative, so the function is strictly decreasing function for pi by 2 to pi। ये आप कर सकते हैं। Then same question of 17 question, prove that the function given that fx is equal to log x is strictly decreasing on 0 to pi by 2 and strictly increasing on pi by 2 to pi। अभी इसकी बात करते हैं हम। सेम क्वेश्चन, तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी इन क्वेश्चंस पे। देन क्वेश्चन नंबर 17, this question number 17, prove that fx is equal to log of cos x, then f dash x 1 by cos x and cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, and then f dash x is equal to minus 10x। अभी अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो जो हमारे पास इंटरवल दे रखा है, दिस इंटरवल इज 0 to pi by 2। 0 to pi by 2 की बात करते हैं पहले। 0 to pi by 2, दिस वैल्यू इज tangent x is positive but the sign is negative, then f dash x is less than 0, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास है टेंजेंट है, टेंजेंट लाइज बिटवीन 0 to pi by 2, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव बट द साइन इज नेगेटिव, देन f dash x is completely negative and this value is negative, then less than 0। f dash x is less than 0, the function is strictly decreasing function, and then strictly increasing on pi by 2 to pi। pi by 2 to pi में क्या होगा, जो pi by 2 to pi इस फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा, इस इंटरवल में टेंजेंट जो है वो हमारा नेगेटिव होता है। नेगेटिव हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, एंड f dash x पॉजिटिव हो जाएगा तो f dash x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। Then prove that the function given by fx is equal to x cube strictly increasing on r। ये increasing on r कुछ है, fx एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 100, एंड देन f dash x निकालेंगे, f dash x is 3x स्क्वायर, दिस माइनस 3x प्लस 3। यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ जो हमारे पास है उसमें रियल वैल्यूड फंक्शन पे इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, f dash x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग के लिए। देन 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास ये वैल्यू आई 3 to the 6, सॉरी दिस वैल्यू इज 3 to the 6x। तो इसको डिवाइड हम लिख सकते हैं 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज करके चलते हैं निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम। देन 3 इंटू दिस x माइनस 1 और x माइनस 1, दो फैक्टर हो गए हमारे पास, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर 3 x माइनस 1
पास क्या आया, x-1 एक हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया -1, तो -1 to -infinity एंड -1 to infinity, ये हमारे पास जो वैल्यू होगी। अब देखें इस वैल्यू में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी देखते हैं, जब हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, जैसे हमने 2 पुट, x से कम वैल्यू पुट करी, अगर हम मान लो -2 वैल्यू पुट करते हैं, दिस -2 दोनों ही माइनस की वैल्यू आ जाएगी, दोनों माइनस की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई होकर वो पॉजिटिव हो जाएगी। दैट मीन्स f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अगर हम 1 पे वैल्यू पुट करते हैं तो 0 के इक्वल आ ही जाता है। अगर हम इस इंटरवल में +2 की वैल्यू पुट करते हैं, देन +2, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। दैट मीन्स द फंक्शन, द डेरिवेटिव f डैश x is greater than 0 always in interval this, therefore fx x cube minus 3x square plus 3x plus 100 is increasing for all real values for belongs to R. And 19 question, the interval in which y is equal to x square into e raised to power minus x is the same question। इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने के बाद इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दें, वहां से जो वैल्यू आएगी वो आपका इंटरवल आएगा। तो ट्राई योर सेल्फ, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।